Today we have to deal with the motor insurance, the last topic that I have sent you the video. So we will be dealing with that. What is motor insurance and what is its importance, and what are the different principles on which this motor insurance policy is based. ठीक है, तो okay. So, have you seen the YouTube video that I have sent to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, any doubt you are having regarding that? Any doubt you have? I mean, comprehensive policies. Ma'am, policies of motor. That is point to comprehensive policy. Okay. ठीक है. So, first of all, let me give the introduction. Is my voice audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, first of all, let me give the introduction of the motor insurance. What is it? Because already we have completed our 3 units. That's life insurance, fire insurance, marine insurance, and the last unit is totally related with the miscellaneous insurance, in which the 3 both the videos I have already sent WhatsApp group. So again, I'm making you the summarization of all the points because I have already made the video and sent to your WhatsApp group. Okay, regarding all the 5th unit. But in the class, just we will summarize it, that what I have taught you in my video. And if any problem you are having in your video, please do ask me. Any doubt on any chapter, किसी भी चीज में आपको किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट है तो you can just ask me. Okay. So motor insurance, जिसको हम कहते हैं वाहन बीमा. So motor insurance that got recently a great momentum. In older times, the person who were injured or killed through the negligence of motorists could not get the financial redress either to them or to their legal heirs, because no scheme of insurance was present at that time. ठीक है, पहले के टाइम में, ओल्डन डेज में क्या होता था कि अगर मोटरिस्ट के वजह से, ठीक है, अगर मोटरिस्ट के वजह से आपको कोई भी तरीके के, किसी भी तरीके का आपके वाहन को, योर पर्सनल कार, द व्हीकल्स और द कमर्शियल व्हीकल, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रक्शन या डैमेज होता था, तो क्या होता था कि वहां पे उनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलता था. क्यों? क्योंकि आपको किसी भी तरीके का आपने इंश्योरेंस कराया नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती नहीं थी. तो आपको अगर यदि आपकी कोई भी कमर्शियल व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल को लॉस या डिस्ट्रक्शन होता था, सो नोबडी वाज देयर टू कंपनसेट दैट लॉस. द पर्सन whose motor was there, he himself has to make all the financial burden, because all is falling on him only. But उसके बाद से जब देखा गया कि बहुत तरीके की दिक्कत और परेशानी आ रही है, तो फिर मोटर इंश्योरेंस को एग्जिस्टेंस में लाया गया. क्यों? जस्ट टू मिटिगेट द फाइनेंशियल हार्डशिप that is caused to person. The Motor Vehicles Act 1939 was amended from time to time, and it was made compulsory. It was made mandatory for the motorist to insure against the risk of liability to third parties. ठीक है, तो इस फाइनेंशियल हार्डशिप को कम करने के लिए, इस डिस्ट्रक्शन और डैमेज को कम करने के लिए जो पर्सन्स को होती थी, मोटर्स को होती थी, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, ठीक है, 1939 में मोटर व्हीकल्स एक्ट को ले आया गया, जो मतलब इट वाज मेड कंपल्सरी, बहुत ही आवश्यक कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया फॉर द मोटरिस्ट टू इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज. ठीक है, जो कि मैंडेटरी कर दिया. मैंडेटरी मतलब बिल्कुल कंपल्शन जिसका हो गया. आप देखेंगे कि whatever vehicles you are just taking, तो आपका हमेशा
आप देखेंगे कि ऑन रोड प्राइस और ऑफ रोड प्राइस में दैट इज मतलब मच डिफरेंस। आप जब भी किसी शोरूम में जाते हैं तो आप हमेशा जब शोरूम के अंदर की प्राइस पूछते हैं तो कुछ और होती है, और जब आप मोटर लेके बाहर आते हैं तो जो उसकी ऑन रोड प्राइस होती है दैट इज समथिंग एल्स। क्यों क्यों ऐसा होता है? व्हाई इज इट? बिकॉज द इंश्योरेंस ऐड हो जाता है, उसमें आरटीओ ऐड हो जाता है, ठीक है। और एज सून एज आप देखेंगे कि जैसे ही आपके वाहन का, आपके मोटर का इंश्योरेंस खत्म होगा, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी कि नाउ योर इंश्योरेंस इज एंडिंग, प्लीज गेट इट इंश्योर्ड अगेन, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो वो तब तक रोड पे चलाने की आपको अनुमति नहीं होती है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट मोटर टू द रोड जब तक कि आपने उसका बीमा करा नहीं लिया है। until and unless you get it that motor insured, तभी आपको इजाजत मिलती है, तभी आपको अलाउ किया जाता है कि अब आप इसको रोड पे चला सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई कंपनी आपको अपना व्हीकल बेचती है, चाहे वो कार हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, एनी टाइप ऑफ व्हीकल, तो जब तक वो व्हीकल उसका बीमा नहीं हो जाता है, until and unless that motor, that vehicle is insured, it's not allowed to get रोड पे चलने के लिए उसकी अनुमति नहीं मिलती है। तो इसी सब को देखने के लिए, और कभी कभी एक्सीडेंट्स में पहले के टाइम में यदि किसी तरीके के कोई हानि, कोई डिस्ट्रक्शन, डैमेज आपके बाइक को, कार को हो जाता था, तो नोबडी वाज देयर टू कंपेंसेट। कोई आपको खुद ही अपना वो फाइनेंशियल हार्डशिप बेयर करना पड़ता था, अपने डिस्ट्रक्शन डैमेज को खुद ही बेयर करना था, यदि आपको एक्सीडेंट से हो या आपके व्हीकल को एक्सीडेंट से हो, ठीक है। तो इसी फाइनेंशियल हार्डशिप को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इट वाज मेड कंपलसरी फॉर द मोटरिस्ट, ये बहुत एक मैंडेटरी बनाया गया मोटरिस्ट के लिए कि टू इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, ताकि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराइए, बीमा कराइए, और तभी जाके आप उसको रोड पर चलाइए, ताकि आपको इंश्योरेंस कंपनी कल को यदि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी तरीके की हार्डशिप आ जाती है, any type of happening of the event is there, any type of hardship is coming, so insurance company is there to compensate that loss. इंश्योरेंस बीमा कंपनी रहती है, यदि आपने वाहन बीमा कराया है तो वो वहां रहती है कि आपके ऊपर कल को यदि किसी भी तरीके की आपदा मुसीबत आती है, any type of loss that's going to befall on the insured, so the insurance company is there to compensate that loss. तो इसी को हम कहते हैं मोटर इंश्योरेंस। तो इज द कंसेप्ट ऑफ मोटर इंश्योरेंस क्लियर टू यू? और इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम इंश्योरेंस की तरह है, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द, हम लोग पढ़ते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, एंड द रेस्ट ऑल द पार्ट इज द जनरल इंश्योरेंस, जिसमें आपका आता है फायर इंश्योरेंस, marine insurance, and there are the different types of the miscellaneous insurance that's related to the motor insurance, burglary, bank assurance, cattle insurance, ठीक है, rural insurance, health insurance। अभी हम लोग इसके बारे में भी कल आपको बताएंगे। ये यूनिट में दो चीजें आपके बारे में, एक तो पूरा मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जिसमें आपको व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द मोटर इंश्योरेंस ये आपको पढ़ना है, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट इज इट्स पॉलिसीज, बेसिकली दीज थिंग्स यू हैव टू डू। और मिसलेनियस में बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपका है रूरल, हेल्थ और बर्गलरी इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। So today and tomorrow we'll be dealing with what is concept of motor insurance, what is its principle, and what are the importance of that. And tomorrow we'll be dealing with what are the different types of policies of the motor insurance. And day after tomorrow, that's Saturday, our class is there. So in that we will be dealing with what are the different types of the miscellaneous insurance, that's burglary, रूरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। विद दैट वी कंप्लीटिंग विद द 5th यूनिट। तो बस एक ही यूनिट फिर हम लोग की रह जाएगी, वो वी विल डू इट द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया? मोटर इंश्योरेंस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंश्योरेंस है। यहाँ पे दो तरीके की पार्टीज होती है, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, वन इज द इंश्योर्ड एंड अनदर वन इज द इंश्योरर। जिसमें क्या होता है कि इंश्योर्ड जो होता है वो इंश्योरेंस अपने मोटर का, अपने व्हीकल का कराता है, और इंश्योरेंस कंपनी कौन होती है? जो उसके वाहन का बीमा करती है, ठीक है। So that's the contract, that's the agreement between the two parties, that's insured and insurer, whereby the insured pays the premium, and in compensation to that premium, the insurance company is going to compensate the loss, and the loss should be that proximate cause which should be mentioned at the time of entering into agreement or contract.
वही बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रिंसिपल में आपको पहले भी पढ़ाया था कि प्रॉक्सिमेट कॉज, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कॉज वही अगर होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के टाइम में मेंशन किया होगा, देन ओनली द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कंपेंसेट द लॉस। अगर मान लीजिए आपने मेंशन कुछ और किया है और कॉज कुछ और हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू कंपेंसेट एनी लॉस। द लॉस कॉज शुड बी द सेम as you have entered at the time of entering into contract. The proximate cause should be same. तो इस proximate cause को अगर वही cause होता है और किसी भी तरीके की hardship happening of the event insured के वाहन को होता है, vehicle को होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो उसकी खुद की अपनी पॉलिसी हो, प्राइवेट कार हो, कमर्शियल हो, मोटरसाइकिल्स हो, स्कूटर हो, ऑटोसाइकिल हो, किसी भी तरीके का वाहन, किसी भी तरीके का व्हीकल जिसका आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो कॉज वहां पे मेंशन होना चाहिए कि क्या कॉज आपने लिखा है, और या तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना। अभी किसी ने पूछा, मैं बताती हूँ अभी उसका मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी वही पॉलिसी होती है जिसमें आप सारे तरीके के हैपनिंग, सारी तरीके के लॉसेस को एक साथ रखते हैं, उसमें ऐसा कुछ बटा हुआ नहीं रहता है। ऑल द लॉसेस दैट्स रिलेटेड टू द व्हीकल्स, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, इंजरी, डिस्ट्रक्शन, डैमेज जो व्हीकल या मोटर से रिलेटेड होगा, वो सारी चीजें आएंगी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंतर्गत। Everything is coming into the comprehensive policy, and once you are taking this comprehensive policy, that means पूरे तरीके के वाहन के किसी भी तरीके के लॉस, कोई भी तरीके की आपदा, मुसीबत, कॉज, हार्डशिप यदि इंश्योर्ड के ऊपर आई और यदि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू कंपनसेट द लॉस दैट्स गोइंग टू बी फॉल ऑन द इंश्योर्ड। ठीक है, तो इसी को हम जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में आपको बताएंगे। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द पॉलिसीज ऑफ द मोटर इंश्योरेंस, सो इन दैट आई विल टेल यू द डिस्क्राइब करूंगी आपको पूरे तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में आपको बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रीमियम होता है, दैट्स वेरी स्टैंडर्डाइज्ड बिकॉज ऑफ बिजनेसेस टैरिफ। नो इंश्योरर कैन चार्ज lower rates than the tariff rates, and no insurer can grant benefits exceeding than those prescribed by the tariff. जो टैरिफ है आपको उसी के हिसाब से प्रीमियम को तय करना है, ना आप उससे ज्यादा तय कर सकते हैं, ना आप उससे कम तय कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग एंड नॉट बियॉन्ड दैट स्पेसिफाइड tariff that has been fixed, and that standardized premium will be totally according to the what is the tariff that has been there, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली होता है वाहन बीमा, या हम इसको कह सकते हैं मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, और जो पर्पस, जो व्हीकल्स जिसको हम क्लासिफाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द मोटर इंश्योरेंस, दैट इज द प्राइवेट कार। दैट मीन्स कि आपका कार जो पैसेंजर फॉर हायर या रिवॉर्ड के लिए नहीं आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल हो गई फॉर पैसेंजर व्हीकल या कैरिंग कोई व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स। ठीक है, जो कमर्शियल बिजनेस के पर्पज से हो गई। ठीक है, फिर तीसरा हो गई कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोसाइकिल। तो इतने तरीके के वाहन को आप वाहन बीमा के अंतर्गत में इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटोसाइकिल। ठीक है, सो दीज आर द व्हीकल्स दैट कम्स अंडर द मोटर इंश्योरेंस, जो वाहन बीमा के अंतर्गत जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है what are the principles basically बिल्कुल वही सेम है जो फायर और मैरीन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल है। इसमें सबसे पहला एक बार मैं समराइज कर दूंगी, वैसे तो ये मैंने आपको कितनी बार पढ़ा चुका है। फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में भी मैंने आपको सिद्धांतों के बारे में बताया, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द मोटर इंश्योरेंस। तो 5 मिनट में मैं उसको भी एक बार समराइज कर देती हूँ कि किन सिद्धांतों के ऊपर वाहन बीमा बेस्ड रहता है। तो नंबर 1 इज द अटमोस्ट गुड फेथ, जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज द प्रिंसिपल जहां पे आपको
one party should disclose all the material facts to other party, और दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति दोनों पार्टीज को विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंश्योर्ड ने कुछ छुपा लिया और इंश्योरर ने कुछ छुपा लिया। दोनों ही पार्टीज को, चाहे वो इंश्योर्ड हो या फिर इंश्योरर हो, दोनों को पार्टीज को एक दूसरे को अपनी बात कहनी चाहिए, और कहने के बाद दोनों को एक दूसरे के पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, और सारे तरीके के मटेरियल फैक्ट्स एक दूसरे को डिस्क्लोज करना चाहिए। तब अगर कोई बात आपके छुपाया या आपने नहीं बताया, ठीक है, तो जिसके वजह से पूरा ये राइट होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि इंश्योरेंस कंपनी विदाउट द डिस्क्लोजर ऑफ वन मटेरियल फैक्ट दैट्स वन और द अनदर वे इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज नल एंड वॉइड। ठीक है, यदि आपने किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी छुपाई है या नहीं दी इंश्योरेंस कंपनी को, या इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपसे कोई जानकारी छुपाई या कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई, तो दोनों के पास इक्वल राइट होता है उस केस में कि कॉन्ट्रैक्ट को वो जब चाहे तब नल एंड वॉइड ट्रीट कर दे और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। ठीक है, सो दैट्स द अटमोस्ट गुड फेथ। दैट मीन्स कि दोनों को एक दूसरे को सारी बातों को बताना चाहिए और एक दूसरे के प्रति एक विश्वास होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ताकि आप सारी बात आप उसको बताएं और इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी से रिलेटेड सारी बात आपको बताए। बोथ शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस टू ईच अदर। फिर आपका होता है दूसरा, इसमें भी सेम होता है आपका प्रिंसिपल, दैट्स द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। That means the insured should have the pecuniary interest in that property, in that vehicle, in such a way that when that vehicle is there, he's benefited by the existence of that property, and if tomorrow that vehicle is not there, he's actually suffering a loss. कहने का मतलब कि आपको इंश्योर्ड प्रॉपर्टी में इस तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि कल को, या यदि वो व्हीकल सही सलामत है, यदि आपका वाहन बिल्कुल सही है, तो आप उससे, आपको किसी ना किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, यू आर रियली बीइंग बेनिफिटेड बाय दैट। ठीक है, और कल को यदि वो वाहन का एक्सीडेंट हो गया, उस वाहन में मान लीजिए आपकी बाइक टूट फूट गई, कार में बहुत दिक्कत आ गई, तो रियली में एक्चुअली में आपको उससे लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अब इंश्योरेंस करा दिया और आप बेफिक्र हैं, इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। आपका उसमें बिल्कुल पेक्यूनरी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, इसी को हम कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा आपका आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मैंने बताया कि इंडेमनिटी इज दैट प्रिंसिपल इन विच द इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरीके से कोशिश करती है, इट मेक्स ऑल एफर्ट्स to put the insurance in the same condition as he was before the happening of the event. कहने का मतलब कि जो इंश्योर्ड है उसको उसी सेम पोजीशन में कर देना जैसे वो एक्सीडेंट, डिस्ट्रक्शन या डैमेज के पहले था। जैसे मान लीजिए आपका प्राइवेट कोई व्हीकल है, उसका एक्सीडेंट हो गया और आपको 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है, आपकी गाड़ी में, आपकी प्राइवेट कार में, किसी भी तरीके की व्हीकल में, वाहन में। ठीक है, तो that insurance company is coming, he's actually indemnifying what is the actual value of loss, and if I will see that only the 50,000 loss is there, the insurance company is going to compensate that 50,000 to the insured, and finally the claim is over. He's bringing back the insured in the same condition as he was before the destruction or damage. ठीक है, 50,000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी आई, देखी कि हाँ भाई इसको 50,000 का लॉस हुआ है, वो कंपनसेट करी, और इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जो है उसको अपने जो भी उसके कार में दिक्कत हुई थी, एक्सीडेंट में उसका 50,000 का लॉस हुआ था, यदि उसने बीमा करा रखा है, वाहन बीमा, तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी पर देखेगी हाँ भाई एक्चुअली में 50,000 का लॉस हुआ है, और वो उस 50,000 को इंश्योर्ड को वापस कर देगी, उसका क्लेम उसको दे देगी, उसका कंपनसेशन उसको दे दोगी, और उसको उसी सेम कंडीशन में ले आएगी, क्योंकि उसको जब 50,000 रुपया मिल जाएगा तो वो जब चाहेगा तब गाड़ी को अपने 50,000 का जो नुकसान हुआ है उसको जाके बना लेगा और वापस से गाड़ी उसी तरीके से नई हो जाएगी। तो इंडेमनिटी का मेन पर्पस ही होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इज दैट टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम कंडीशन एज ही वाज बिफोर। ठीक है, तो इसलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट या इंडेमनिटी होना
बहुत जरूरी है। ये एक अगला सिद्धांत जो वाहन बीमा में रहता है, दैट्स प्रेजेंट इन द मोटर इंश्योरेंस, दैट्स द एंड द प्रिंसिपल। फिर आपका आता है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में भी मैंने बताया कि पूरी जो राइट्स होती हैं वो चली जाती हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, अगर वंस ही हैज डिस्क्लोज ऑल द क्लेम्स टू द इंश्योर्ड। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है कि आपका कार का एक्सीडेंट हुआ और 50,000 का नुकसान हुआ आपको, इंश्योरेंस कंपनी आई, इंडेमनीफाई करी व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लॉस, और उसने देखा कि हाँ भाई एक्चुअली में 50,000 का लॉस हुआ है, वो उसको दे दी और फाइनली वो चली गई, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ मान लीजिए जिसने एक्सीडेंट किया होगा या जिसने आपकी गाड़ी को लड़ाया होगा, भाई उसने बोला यार मेरी वजह से गाड़ी लड़ी है, आई गिव यू द 20,000 30,000 मुझे लग रहा है यार इसका लॉस हुआ, आई गिव यू द दैट, ठीक है, तुम इसका रिपेयर करा लेना। तो दैट 30,000 जो आपको सामने वाले ने दिया है उसके ऊपर अब आपका कोई क्लेम नहीं है। That you're subrogating, insurance company subrogating all the rights once that company has paid the claim and compensation to the insured, क्योंकि उसने जितना एक्चुअली में आपको लॉस हुआ है अगर आपने बीमा कराया है, उसने आपको आपका क्लेम दे दिया, उसने देखा कि हाँ भाई इतने का लॉस हुआ है और वो उसने आपको क्लेम दिया। उसके बाद किसी भी अलग तरीके से कहीं से भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो पूरा राइट सबरोगेट हो गया इंश्योरेंस कंपनी का। और अब वो क्या करेगी, वो आपको कंपनसेशन जैसे ही एक बार उसने दे दिया तो अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अलग से कहीं अगर प्रॉफिट कमा ले, पैसा नहीं रखने का कोई भी राइट आपके पास नहीं है। आप सिर्फ उतना क्लेम लीजिए जितना आपका लॉस हुआ है और उतना ही कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, दैट्स द सबरोगेशन। फिर नेक्स्ट आपका होता है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में दैट मींस अगर आपने सेम पॉलिसी कई अलग तरीके की कंपनी से करा रखी है तो सबकी अलग अलग लायबिलिटी होगी। मान लीजिए मैंने 30,000 का ए कंपनी से कराया, 20,000 का बी कंपनी से कराया, 30,000 का सी कंपनी से कराया, एंड वंस मान लीजिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 20,000 का लॉस हो गया, तो जैसे जैसे हमने जिससे जिस तरीके की पॉलिसी ली है उसकी सबकी अपनी वो फॉर्मूला होता है कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉलिसी, टोटल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इनटू एक्चुअल लॉस, कि मैंने आपको बाकी के क्लासेस में बताया भी है पूरा उसके साथ मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, प्लीज गो थ्रू दैट, वो मैंने पूरा न्यूमेरिकली आपको समझाया है कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इसी तरीके से सबकी ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी जो एक्चुअल लॉस एक्चुअली इंश्योर्ड को हुआ है, तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ, और जिसकी जितनी लायबिलिटी बनती है वो इंश्योर्ड को अपनी लायबिलिटी के हिसाब से, अपने रेशियो के हिसाब से उसको पैसा देगा। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर आता है प्रॉक्सिमेट कॉज, जो मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी इज ओनली लायबल फॉर दैट लॉसेस which you have entered at the time of entering into contract. That insurance company is not at all liable for the losses that's not present, that cause is not present at the time when you are entering into contract with the insurance company. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसी कॉज का लॉस देगी जो आपने एक्चुअली में विद द टाइम यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मेंशन किया है, ठीक है। यदि वो कॉज नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कंपनसेशन नहीं देगी, ठीक है। तो दिस वाज द प्रॉक्सिमेट कॉज। और लास्ट आपका होता है मिटिगेशन, दैट मींस एज अ प्रूडेंट पर्सन, एक अच्छे इंसान की तरह आपको यू शुड टेक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू मिटिगेट। मतलब क्या होता है कि लॉस को कम से कम करना। यदि आपके व्हीकल का, यदि आपके वाहन का बीमा नहीं हुआ होता, if your vehicle has not been insured, so what are the possible steps you have taken as a prudent person to mitigate that loss, ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो और कम से कम लॉस हो, क्या आप स्टेप्स लेते, ठीक है। तो इसी तरीके से मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल यही कहता है कि हम किस तरीके के कौन से स्टेप्स लेना हमको चाहिए। यदि मान लीजिए किसी तरीके का डैमेज, कोई दिक्कत आ गई, तो हमें उस लॉस को बढ़ाने की कोशिश, या निश्चिंत होकर नहीं रहना चाहिए यार मेरा तो इंश्योरेंस है, whatever loss will be there, I'll get the compensation from the insurance company, so no need to worry. It should not be like that. अगर आप देख रहे हैं यार आपके सामने एक्सीडेंट हो रहा है या आपकी गाड़ी को कुछ दिक्कत है, तो कोशिश पूरी करिए कि आप एक्सीडेंट से अपनी गाड़ी को बचा पाए, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से, इंजरी से बचा पाए।
आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करिए, पूरी कोशिश करिए. यू शुड टेक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू मिटिगेट दैट लॉस एज अ प्रूडेंट पर्सन. ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वाहन बीमा का. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द मोटर इंश्योरेंस. So these were all the principles of the motor insurance. Now, motor insurance की importance क्यों होती है, क्यों हमें लगता है कि वाहन बीमा होना चाहिए? What is its importance? सबसे पहले इट पेज फॉर डैमेजेस. ठीक है, बाकी आप जाइएगा, मैंने आपको यूट्यूब वीडियो अपना भेजा हुआ है, सारी चीजें मैंने उसमें बहुत तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन की है. यहाँ भी मैं एक समराइजेशन आपको दे रही हूँ. ठीक है, बाकी यू गो थ्रू माय वीडियो, वहां पे एवरीथिंग इज वेरी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली. ठीक है, तो पेज फॉर डैमेजेस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपके वाहन बीमा या मोटर इंश्योरेंस का क्या होता है कि भैया जो भी हमारा डैमेज होता है, जो भी हमारा डिस्ट्रक्शन होता है, उसको एक्चुअली में आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करता है. मोटर, अगर आपके व्हीकल में आपको एक्सीडेंट हो गया या आपके वाहन में कोई दिक्कत हो गई या आपके कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आज जो भी उस पे डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है. ठीक है, दैट इज द वन मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटर इंश्योरेंस. फिर दूसरा आपका होता है कि सेकंड वन इज द इट पेज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन. सेकेंड है कि कल को यदि आप एक्सीडेंट की वजह से मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया या आप इंजर्ड हो गए, तो उस हॉस्पिटल का पूरा खर्चा यदि आपने कराया है मोटर इंश्योरेंस और उसकी वजह से आपने लिखा है कि भैया कल को मेरा भी एक्सीडेंट, कॉज में आपने मेंशन किया है कि कल को मेरा भी एक्सीडेंट हो गया अगर वाहन से, व्हीकल से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा compensate करेगी. अगर this cause is mentioned at the time of entering into contract, so all the expenses of the hospitals will be covered by the insurance company. That is also another importance of the motor insurance. फिर तीसरा होता है it costs less than when purchased online. और अगर आप ये इंश्योरेंस ऑनलाइन लेते हैं तो हमेशा ये आपको सस्ता ही पड़ता है. लोग देखते हैं ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह ऑनलाइन करा लेते हैं, ऑलरेडी इट्स मच चीपर. फिर उसके बाद एक कंपेंसेटरी फैमिली आफ्टर योर डिमाइस. मान लीजिए उस एक्सीडेंट पे यदि आपकी मौत हो गई और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि मेरे डिपेंडेंट्स को ये मेरा प्रीमियम का जो भी पैसा है, तो आपदा आ गई, हैपनिंग हो गई और उस हैपनिंग में मान लीजिए जो भी जिसने भी इंश्योरेंस कराया उसकी जान चली गई, तो आप उसका पूरा जो भी कंपनसेशन होगा उसके फैमिली को या जो भी उसके डिपेंडेंट्स होंगे उसको आप देंगे, ताकि डिपेंडेंट्स डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन्स. ठीक है, किसी और के ऊपर उनको निर्भर होना ना पड़े. उनका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उनको दे दिया जाए इफ द पर्सन हैज बीन डेड विद द व्हीकल, या किसी तरह के मोटर या वाहन से यदि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इट पेज फॉर योर फैमिली आफ्टर योर डिवाइस. ठीक है, फिर इट रिड्यूसेस योर लायबिलिटी. डेफिनेटली इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस यदि आपने कराया है तो कहीं ना कहीं ये आपकी लायबिलिटी को भी रिड्यूस करता है. ठीक है, आपकी लायबिलिटी को कम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं होता तो हमें अगर अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपनी मोटरसाइकिल जो भी, या हम ही इंजर्ड हो गए तो सारा पैसा किसको बेयर करना पड़ता? हम ही को बेयर करना पड़ता. लेकिन अगर आपने वाहन बीमा ले रखा है, इफ यू हैव टेकन द मोटर इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू कंपनसेट दैट लॉट. इट रिड्यूसेस योर लायबिलिटी टू मच एक्सटेंट. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से आपकी लायबिलिटी खत्म कर देगा, बट किसी न किसी तरीके के थोड़ा बहुत आपको कंपनसेशन देगा, कहीं ना कहीं छोटी सी लायबिलिटी आपकी रिड्यूस करेगा. दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटर इंश्योरेंस. फिर आपका होता है कि इट गिव्स द फाइनेंशियल, मेडिकल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन. आपको मोटर इंश्योरेंस फाइनेंशियल, मेडिकल और पर्सनल प्रोटेक्शन देता है. फाइनेंशियल मतलब जो भी आपके कार वार में एक्सीडेंट हो गया वो आपको फाइनेंशियली इंडेमनिफाई करके वो पे करता है कि भैया इतना एक्चुअल लॉस था, दिस हैज बीन पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू यू. ठीक है, मेडिकल दैट मीन्स कि आपका उसमें एक्सीडेंट हो गया एंड यू हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड. आप हॉस्पिटलाइज्ड है तो आपका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी के जिम्मे में पड़ता है और वो पूरा एक्सपेंस सारा इंश्योरेंस कंपनी आपका देखती है. फिर आपका
पर्सनल प्रोटेक्शन भी आपको देता है, क्योंकि जब भी जो इंश्योरेंस होता है ना, वो हमेशा हमेशा इट अफोर्ड्स पीस ऑफ माइंड टू अस, हमेशा इट मेक्स अस सेफ एंड सिक्योर। यदि हमने, चाहे वो लाइफ के केस में हो, चाहे वो फायर के केस में हो, चाहे वो मरीन के केस में हो, चाहे वो मोटर के केस में हो, जब भी हम किसी भी तरीके का इंश्योरेंस करा रखे हैं या बीमा करा रखे हैं, डेफिनेटली इट मेक्स अस सेफ एंड सिक्योर। हम अपने आप को सेफ और सिक्योर रखते हैं। इट जस्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कल को किसी आपदा मुसीबत से हमें बचाता है, और हम सोचते भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि कल को क्या, यदि किसी भी तरीके की हैपनिंग ऑफ द इवेंट हुई या कोई भी तरीके की आपदा मुसीबत आई, तो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू कंपनसेट दैट लॉस, सो नो नीड टू वरी। तो डेफिनेटली जब आपको कोई चीज पीस ऑफ माइंड देती है, आप तनाव मुक्त होकर कार्य करते हैं, तो हमेशा उस कार्य में बहुत अच्छी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रहती है। डेफिनेटली जो आपका इंश्योरेंस है, इट अफोर्ड्स यू द पीस ऑफ माइंड एंड दैट एनहांसेस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्सन टू मच ग्रेटर एक्सटेंट, और वो आपको कार्य करने में और भी इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस है वो हमको हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें कई तरीके की पॉलिसी भी है कि एक्ट पॉलिसी है, फिर थर्ड पार्टी पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कल करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें होता है वो दैट्स द व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द मोटर इंश्योरेंस, दैट वी आर गोइंग टू डू इट टुमारो। कल हम लोग डील करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज क्या है मोटर इंश्योरेंस की, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि बर्गलरी इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर आपके बाद बर्गलरी है, आपका हेल्थ है, और शायद वो कैटल इंश्योरेंस है। ठीक है, तो बर्गलरी इंश्योरेंस एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि बर्गलरी इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ बिजनेस दैट्स अंडररिटन इन द मिसलेनियस डिपार्टमेंट। जब हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो बेसिकली देखिए आपका आता है लाइफ, फायर, मैरिन। ठीक है, ये तो आपके मेन इंश्योरेंस होगा। इसके अपार्ट बहुत सारे ऐसे जनरल इंश्योरेंस होते हैं जिसको हम मिसलेनियस में गिनते हैं। तो उसमें आता है मोटर इंश्योरेंस, उसमें आता है बर्गलरी, उसमें आता है कैटल, उसमें आता है रूरल, उसमें आता है हेल्थ, उसमें आता है बैंक का इंश्योरेंस। दैट मीन्स बहुत तरीके के मिसलेनियस टाइप्स के भी आज के टाइम में इंश्योरेंस एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। तो दैट बर्गलरी इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मेजर बिजनेस क्लास, और दैट मीन्स कि बिजनेस हाउस बर्गलरी इंश्योरेंस इज एज एसेंशियल एज फायर इंश्योरेंस। जैसे आग बीमा एक एसेंशियल है, उसी तरीके के से बर्गलरी इंश्योरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट एनेबल्स देम टू रिकप द लॉसेस सफर्ड बाय देम कॉन्सिक्वेंट ऑन बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग। आपको जानते हैं बर्गलरी मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी डिफाइन इट टू मी? बर्गलरी मतलब आप क्या समझते हैं? The goods that is lost by theft. हाँ, The goods that is lost by theft. very That good. is stolen. Okay, very good. The goods that is lost by theft. ठीक है, that means किसी भी तरीके के गुड्स को किसी ने थेफ्ट कर लिया, ठीक है, या डिसऑनेस्ट तरीके से आपके प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, या चोरी कर ली, या उसी में कुछ लॉस कर दिया। थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रेमाइसेस। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने वेयर हाउस में कोई गुड्स रखा था और उसकी वो चोरी हो गया, थेफ्ट बाय अ पर्सन इन प्रेमाइसेस। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आती हैं आपकी बर्गलरी इंश्योरेंस में। बर्गलरी इंश्योरेंस पूरी तरीके से थेफ्ट से रिलेटेड होता है कि जो भी गुड्स आपका चोरी हो जाता है, या किसी ने ऐसे चुरा लिया, आपने वेयर हाउस में गुड्स रखा है और किसी ने आपने काउंट करके कुछ गुड्स रखे होंगे, अपने स्टॉक्स रखे होंगे, और उसमें से कुछ स्टॉक्स चोरी है जो आपको मालूम भी नहीं है कहाँ मूव होके वो चला गया। तो इसी तरीके के लॉस ऑफ गुड्स ऑफ बाय थेफ्ट को हम कहते हैं बर्गलरी इंश्योरेंस। ठीक है, बाकी डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे। मेरा दूसरा वीडियो भी आप देखिएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको बर्गलरी, रूरल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, ये सारा। बाकी फर्स्ट यूनिट में बैंक का इंश्योरेंस वगैरह और ओम्बड्समैन वगैरह है। तो दैट आई सेंड यू द वीडियो एज एंड व्हेन, जैसे जैसे हम लोग क्लास आपकी लेंगे और जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक खत्म करेंगे, आई सेंड माय यूट्यूब वीडियो टू योर ग्रुप
दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि जब चीजें आप प्रैक्टिकली देखते हैं और फेस टू फेस देखते हैं तो हमेशा वो चीजें हमें बहुत कंफर्टेबल होती हैं याद करने में या समझने में। ठीक है, मान लीजिए ऐसे वर्बली कुछ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आपको कुछ नहीं समझा पा रही हूँ, बट वहां पे मैंने ब्लैक बोर्ड से एक एक पॉइंट लिख के आपको समझाया है, तो दैट विल बी मच इजियर एंड कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एम आई राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है, क्योंकि वहां पे वो वीडियो भेज देंगे तो आपको भी आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि वीडियो के ही थ्रू हम लोग चलेंगे, क्लास में भी आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो पॉइंट्स को मैं वर्बली भी आपको समराइज करूं, समझाऊं, और किसी भी पॉइंट्स पे यदि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है आपको तो आप जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो हमने दूसरा यूनिट पूरा लाइफ इंश्योरेंस का खत्म कर दिया, तीसरा फायर मैरीन का खत्म कर दिया, सॉरी चौथा यूनिट, और पांचवा यूनिट जो हमारा था मिसलेनियस वो हमने खत्म कर दिया है, मतलब मोटर। उसमें 2 टॉपिक बचा है, कल हम लोग वो खत्म करेंगे। एक तो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इन मोटर इंश्योरेंस, जिसमें कल मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्ट पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या होती है। वो मैंने वीडियो में भी अपने भेजा है, आप उसको पढ़ के कल मेरी क्लास में आइएगा। हो सकता है कल मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ठीक है? बिना पढ़े मेरी क्लास में आप मत आया करिए, क्योंकि आप जानते हैं क्लास में भी मैं जब रहती हूँ तो हमेशा मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, नॉट ओनली वन वे कम्युनिकेशन। आई ऑलवेज वांट द 2 वे कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड आल्सो। क्या मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? until and unless you are not giving the feedback to me, how can I understand कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, तो कल आप वो वीडियो जो मैं कल हम लोग टॉपिक शेयर करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द मोटर इंश्योरेंस, और उसके साथ मैंने आपको भेजा है बर्गलरी, हेल्थ और रूरल इंश्योरेंस के। प्लीज कल करके मेरी क्लास में आप 1 बजे ज्वाइन करिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, तो हमेशा 2 वे बनिए, आप भी रिस्पॉन्स करिए और मैं भी आपको बताऊं, खाली बस सुनने की आदत मत डालिए। बाकी असाइनमेंट्स यस डेफिनेटली आई विल गिव इट टुडे। ठीक है, आज मैं जरूर से आपको असाइनमेंट दे दूंगी, क्योंकि आप कर लीजिए और आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। और पहले 3 क्वेश्चंस मैं दूंगी और तीनों में आप तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, और यू विल सेंड इट, मैं लिख दूंगी उसमें किस मेल पे आपको भेजना है, एंड प्लीज सेंड इट टू मी ऑन दैट मेल। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? क्या मोटर इंश्योरेंस समझ में आया अभी जितना समझाया है? व्हाट इज इट्स कंसेप्ट, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इज द कंसेप्ट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके Yes, गुड, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग को मोटर इंश्योरेंस हो गया, और अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसकी पॉलिसीज और इसके मिसलेनियस पार्ट्स क्या क्या होते हैं। So with that, I end the class. I have my next class in my M.Com 4th semester. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.